ओके जी, एनी आइडिया लास्ट टाइम क्या किया था, याद है कुछ? मेमन यस सर। सर लास्ट क्लास में जी तो मतलब स्टडी स्टेट एरर किया सर। जी, तो स्टेडी स्टेट एरर उसके उससे रिलेटेड हमने ये कहा था कि इट हैज गॉट थ्री ऑप्शंस, whether it would be zero or it would be constant or finally it can be infinite, आपकी steady state error जो है वो हो सकती है and we did certain examples। और आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं that is in fact finding out the system type number, and in fact that's too related with the same steady state errors. So let's start with the system type number, and number of factors of s in the numerator of the error transmittance, which is TE of s, that is called the system type number of the system। means अगर आपके पास TE of s है कोई, और उस TE of s के अंदर which is the error transmittance, इसके अंदर आपके पास अगर यहाँ पे कोई टर्म ऐसी मौजूद है इसके न्यूमरेटर के अंदर जो कि s इज इक्वल टू 0 के रूट के साथ एसोसिएटेड है, देन s है या s स्क्वायर है या s क्यूब है। so we are talking about that number of factors of s in the numerator of s, numerator of the error transmittance is called the type number of the system। so if ts has no factor of s in the numerator, सपोज इस तरह की कोई चीज जो है वो न्यूमरेटर में नहीं है, इट इज समथिंग 1 डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और s माइनस 2 टाइम डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, समथिंग लाइक दैट। सो इसका मतलब ये है कि इट डजंट हैव एनी फैक्टर ऑफ s इज इक्वल टू 0 वाला इन द न्यूमरेटर, सो द सिस्टम टाइप जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सिस्टम टाइप नंबर की डेफिनेशन और व्हाट इज टाइप 0 सिस्टम? नो सर। Okay, now let's move to steady state error to step input for this system with type number 0 is given as, so RFS जो है that is your input and that is A over S where A is some constant, and again you will be using final value theorem, so limit time t is equal to infinity, E step response of t will be equal to limit s tends to 0 s t E of s RFS, and this is what, this is EFS in fact। ठीक है, इसका मतलब है फाइनल वैल्यू में मुझे लिमिट s टेंड्स टू 0 s EFS जो है दैट इज इन फैक्ट लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी EFT। सो जो भी मेरे पास सिस्टम इनपुट होगी उसके मुताबिक ये स्टेप इनपुट बन सकती है, स्टेप एरर हो सकती है या पैराबोलिक हो सकती है, या इस तरह से जो भी आपकी इनपुट आ रही होगी अकॉर्डिंगली चलेगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो TEFS RFS दैट वुड बी इक्वल टू, जनरलाइज्ड टर्म्स में बात हो रही है, सो लिमिट s टेंड्स टू 0, now RFS is A over S, so S will be cancelled, so as a result of that you will be getting ATE of 0, and we are saying that this is finite। Why finite and why not 0? Any idea? सर 1/s में जब 0 पुट करेंगे तो फाइनाइट हो जाएगा। नो, ये देखिए बच्चा, ये s और s के साथ तो कैंसिल हो रहा है, हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज a t e of s and limit s tends to 0, and we are saying that this is equal to a t e of 0, and we are saying that this is constant। Any idea why this is constant and why it's not 0 and why it's not infinity? The logic is that it's a type 0 system, and type 0 system जो है आपका
उसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर कोई भी चीज ऐसा फैक्टर मौजूद नहीं है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज एस इज इक्वल टू जीरो वाली कोई टर्म है ही नहीं। तो व्हेन एस टेंड्स टू जीरो, सो ये जीरो नहीं होगा। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी आर सेइंग that this has got some constant value. Agreed? So there is no S term in type 0 system. Agreed, Isha? Yes, sir. Okay. This is the situation. Step response of the type 0 system. That's ये जो आपको नजर आ रही है, that's your input. Suppose that's step input है, इसको हम कह देते हैं 1/RS और 1 है ये अगर टाइम डोमेन में, this is t डोमेन में हो रही है, तो y of t जो है आपकी, that's the solid line, and that's the line it is approaching at the steady state, जो dotted line है, and r of t is your input, a u of t है तो इसको आप a कह लें. So in that case, what is happening? This is your steady state error, that at time t is equal to infinity, it is approaching some constant value. So finite state, steady state error for this type 0 system when we have step input. Questions, please. Mehman, Ibrahim, any question, beta? No, sir. Okay, so now let's see how this system of type number 0 behaves for higher power of t inputs like ramp, parabolic, etc. So let's see that. So अगर मेरे पास ramp input है, in that case RFS is equal to a over s square. Now in this case EFS is what? EFS is TEFS into RFS, which is a over s square. And if we are interested in getting the steady state E ramp of t, that would be equal to limit s tends to 0 s TEFS and into a over s square. This time a will be cancelled with this, and as a result of that we are saying that this is infinity. Agreed? Because s is approaching to 0, so as a result of that E ramp of t जो है that would be approaching to infinity. Agreed? Yes, sir. And for other inputs like अगर मैं कहता हूँ कि RFS जो है parabolic है and RFS is equal to a over s cube kind of input है, in that case क्या situation होगी? Limit time t is equal to infinity, E parabolic जो है of t, that would be equal to limit s tends to 0 s TEFS into RFS. In fact, this S is coming by definition of the final value theorem. ये जो आपको S नजर आ रहा है, ठीक? And this whole thing is EFS because we are interested in knowing the final value of EFS, which is TEFS over RFS into RFS. So this time RFS is equal to a over s cube. So limit s tends to 0 s TEFS, whatever the value of TEFS is, a over s cube. This time s will be cancelled and this will be s square, and as a result of that this is infinity as well. So type 0 system में हमने देखा है कि step input जो है वो constant है और higher power of t inputs जो हैं वो infinity आ रही हैं. Questions please. Questions related to this idea. Sir, clear है. Okay beta, let's move forward. ओके जी, रिस्पॉन्सेज ऑफ द टाइप 1 सिस्टम. अब टाइप 1 सिस्टम क्या होना चाहिए? हमने प्रीवियसली बात की है कि अगर तो TEFS के अंदर, विच इज द ट्रांसमिटेंस ऑफ द एरर, अगर न्यूमरेटर के अंदर s इज इक्वल टू 0 रूट वाली कोई टर्म नहीं है, फैक्टर ऑफ s मौजूद नहीं है, तो दैट वुड बी अ टाइप 0 सिस्टम. But this time we are saying that if the system is stable and TEFS has one factor of s, suppose this is something like that, s है s minus 1 over some characteristic polynomial जो है, अगर ये है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर s is equal to 0 वाली एक टर्म जो है वो मौजूद है हमारे पास. So it means कि this would be a type 1 system. और type 1 system जो है उसकी steady state error को अगर हम देखें for the step input, RFS जो है that is a over s, and we are interested in the steady state error which is at time t is equal to infinity. By definition, using the final value theorem, that would be equal to limit
S tends to 0, Te of S, A over S, so that would be equal to A, because this S will be cancelled with this one. So as a result of that, you will be getting ATE of S, where S is approaching to 0. So this is AT raised to power ATE 0, and we are saying that this is 0. Why we are saying it 0? पहले हमने AT of 0 को यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में हमने इसको कहा था फाइनाइट, और यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं 0. एनी आइडिया? सर न्यूमरेटर में तो एस की एक टर्म होगी ना सर ग्रेट, उसमें। जबरदस्त मेमन, जबरदस्त। तो अगर न्यूमरेटर के अंदर s वाली टर्म मौजूद है तो जैसे ही s अप्रोच करेगा 0 को तो ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। सो वी हैव सीन दैट फॉर अ टाइप 1 सिस्टम द स्टेप इनपुट अगर आप उसे देते हैं तो स्टेडी स्टेट जो आपकी एरर है दैट वुड बी 0। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर रैंप इनपुट हम देते हैं तो इन केस व्हाट हैपेंस। तो रैंप इनपुट के केस में आपके पास RFS जो है दैट इज a over s square, and when you calculate this using the final value theorem, what will happen that this s will be cancelled with this, and s is equal to 0 will force this whole term to be equal to what? Any idea? कांस्टेंट ही सर होगा। कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज टीई ऑफ एस के अंदर भी एक टर्म मौजूद है जो कि एस वाली है, सो दिस एस विल बी कैंसल्ड विद दैट एज वेल, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग सम फाइनाइट वैल्यू जो है आपको वो मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमने दो केसेस देखे टाइप 1 सिस्टम में। टाइप 1 सिस्टम में आपकी स्टेप इनपुट जो है वो 0 है, और टाइप 1 में जो आपकी रैंप इनपुट है उसकी स्टेडी स्टेट आउटपुट जो है दैट इज फाइनाइट, स्टेडी स्टेट एरर जो है दैट इज फाइनाइट। एंड अगर हम हायर पावर्स यूज करें तो इन दैट केस क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा सर। इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज अगर यही चीज मैं इसी को यहां से लेके चलूं, सो अगर आर ऑफ एस जो है दैट इज इक्वल टू ए ओवर एस क्यूब, सो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस Te of s into a over s cube. So this s would be cancelled and this would be s square, and the thing would be limit s tends to 0 Te of s into a over s square. Now one s will be cancelled with the s of the Te of s numerator में जो इसके s पड़ा हुआ है, but still there will be one s in the denominator. So as a result of that we will be getting infinity. Agreed? यस सर। दिस इज द सिचुएशन। आपने देखा है कि जब आपके पास रैंप इनपुट है तो व्हाट्स हैपनिंग, ये आपके पास y ऑफ t है इन केस के आपकी इनपुट जो है वो रैंप है, विच इज ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, और ये आपके पास फाइनल जो आउटपुट है वो चल रही है। एंड स्टेडी स्टेट एरर आप देखें अगर तो दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, दो आपका सिस्टम जो है वो अप्रोच कर रहा है, आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, बट द एरर इज गोइंग अलोंग विद दैट आउटपुट, और वो कांस्टेंट जो है वो चल रही है। क्वेश्चंस प्लीज। नो क्वेश्चन। इरफान, आर यू सिटिंग हियर? इरफान बैठे हैं बेटा? ओके, लेट्स मूव फर्दर। एंड टाइप 2 सिस्टम क्या होना चाहिए? अगर टी एफ एस के न्यूमरेटर में एस स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद हैं तो इस बात का मतलब है दैट इट्स अ टाइप 2 सिस्टम। एंड फर्दर वी कैन एक्सटेंड दिस डेफिनेशन कि अगर S3 वाली टर्म्स होंगी तो टाइप 3 है, S4 वाली टर्म्स हैं तो टाइप 4 सिस्टम है। इसी तरह से हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे इस डेफिनेशन को। नाउ steady state error to the step input will be 0. You can do it. Steady state error to the ramp input would be 0. Steady state error to the parabolic input to this system will be constant, and steady state error to the higher power of t inputs for this type 2 system is infinity or ever increasing. Any questions, any confusions regarding this? Should I do it for you, or it's okay? क्लियर है सर। क्लियर है सर।
Great. And that's your response of the type 2 system parabolic input के लिए. और आपको देख रहे हैं कि as we said कि parabolic input के लिए the steady state error will be constant. So you can see from here as well that the output, which is the solid line, which is moving alongside with this parabolic input, and the steady state error is constant in this case. Okay. Now this is the tabular form, tabular representation of the system types and responses. We have seen that if system type is 0, then the step input, so this is the step input, this is ramp, parabolic, and then the higher powers. Okay, so step input में क्या हो रहा होता है? What is the R of t? इस केस में R of t मेरा क्या होता है? That is u of t और a u of t कह लें आप. यहाँ पे क्या होता है? T u of t. This is t square over 2 u of t, something like that. And R of t for the higher it is around R of t is equal to something t raised to power 3 वाली टर्म आनी चाहिए into ut और इसमें it's around 1 over something factor है, 1 over 6 का फैक्टर है, suppose normalization factor. ठीक है, so अगर मैं इसका R of s देखूं तो it is 1 over s, it is 1 over s square, it is 1 over s3 and this is 1 over s4. So as a result of that what we are seeing कि ये मेरे पास steady state error आ रही है. So input अगर मेरे पास step input है तो we have seen that type 0 system की जो steady state error है that is constant. और बाकी तमाम अगली जो higher powers of t हैं वहां पे आपको infinity मिल रही है. इसी तरह से जब हम चलते हैं type 1 system में तो type 1 system में steady state error input जो है वो 0 है. We have calculated it. जो आपकी रैंप इनपुट के वजह से जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट इज अ कांस्टेंट एंड फॉर पैराबोलिक एंड फॉर हायर पावर्स ऑफ टी इन द इनपुट दैट इज इंफिनिटी. सिमिलरली टाइप 2 सिस्टम में हमने देखा कि स्टेप इनपुट के लिए 0 है स्टेडी स्टेट एरर, रैंप इनपुट के लिए 0 है, पैराबोलिक इनपुट के लिए दैट इज कांस्टेंट व्हिच वी हैव सीन हियर. दिस इज पैराबोलिक इनपुट के लिए आपकी एरर है एंड फाइनली हायर पावर्स के लिए वो इंफिनिटी है. सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म. You don't need to remember it because there is a method के जिस तरीके से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं. सपोज करें कि आपका जो इनपुट आ रही है और जो आपकी टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम है ये दोनों प्लेयर्स हैं और इनके दरमियान मैच हो रहा है. When the power of the time input exceeds the type number, the input wins and the steady state error is infinite. Suppose इस टेबल में आते हैं. देखिए यहाँ पे पावर ऑफ टाइम क्या है? ईशा यहाँ पे पावर ऑफ टाइम क्या है स्टेप इनपुट में? सर 0 टाइम t रेज टू पावर 0 है. सो सिस्टम t की वैल्यू जो है सिस्टम t की वैल्यू है 0. सिस्टम टाइप नंबर क्या है? सर 1. सर 0 ही होगा सर. Step input. ठीक, so you can see Zero. from here. So when that system type number equals power of time input, there is a tie between system and the input and the steady state error is some constant. इसी तरह से जब हम देखते हैं कि step input के लिए system जो power of t है that is equal to 0, लेकिन system type जो है that is equal to 1. In this case system type is winning. So जब system type जीतेगा या system type win करेगा, in that case the output will be 0. So you are seeing this is 0. Type 2 के लिए अगर देखें तो system type 2 system number जो है वो 2 है. Step input के लिए आपकी power of t जो है वो 0 है. So system wins, output is steady state error जो है वो 0 है. इसी तरह से आपका ramp input के लिए अगर हम देखें तो power of t जो है that is equal to 1. System type is 2, system wins. As a result of that आपके पास जो steady state error है that is equal to 0. And here in this column अगर आप देखें तो system type भी 2 है और power of t भी 2 है. तो as a result of that दोनों equal and we are getting some constant value. Questions please.
Sir, no questions. इब्राहिम, दोनों इब्राहिम। Yes, sir. जी बेटा, एनी क्वेश्चन? No, sir. चलें आप जरा रिवाइज कर दें इस चीज को जो हमने बात की है। सर एक्चुअली सर मैंने क्लास थोड़ी काफ़ी लेट ज्वाइन की है क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही थी सर, तो आई एम नॉट श्योर सर। तो बेटा फिर क्वेश्चन ही पूछ लेते। सर मुझे सर अभी सर मैंने लेक्चर ही सर आपका नहीं लिया हुआ है, तो सर मैं कहाँ से सर पूछूं? नहीं तो अभी तो काफी देर से तो स्टार्ट नहीं किया, ये तो अभी बिल्कुल यहीं पे ही देख रहे थे, कोई इतना ज्यादा देर से तो स्टार्ट भी नहीं किया हुआ। सर मैं एक दफ़ा सर इसको खुद सारा रीड कर लूँ तो फिर मैं आपसे पूछूंगा सर। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। जी एनी क्वेश्चन? इरफान बैठे हुए हैं? बिलाल, बिलाल दावर। यस सर। जी बिलाल, एनी क्वेश्चन बेटा? चलें जी, आप आमादा नहीं हैं कोई भी आप में से क्वेश्चन करने पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अगर आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो हाउ कैन वी फाइंड द सिस्टम टाइप नंबर? Okay, so when a control system has unity feedback, now this is my control system. मेरे पास ये plant है with the transmittance GFS, RFS is the input of the system, YFS is the output of the system, and this is my unity feedback. ठीक है? So what is happening? This is my error at this location, which is RFS minus YFS. So what's happening here? The input R and output Y are compared directly. यहाँ पे आप क्योंकि कोई दरमियान में सेंसर डायनेमिक्स मौजूद नहीं है, so what's happening कि आपका YFS और RFS जो है they are compared directly, and the error signal is driving the forward transmittance GFS, and the system type is determined by we already know that the system type is determined by the number of S is equal to 0 numerator roots in TEFS. TEFS क्या होता है? That is equal to 1 minus TFS, and अगर हम इस TFS को देखें, इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें तो that is GFS divided by 1 plus GFS. So what's happening? You are getting this thing. TEFS is equal to 1 over 1 plus GFS by solving this, and we know that GFS क्या है? GFS is the transfer function of your plant, so that is a kind of ratio of the polynomials. So GFS is numerator polynomial divided by denominator polynomial, and if we put this NFS GFS की वैल्यू अगर NFS over DFS इस इक्वेशन के अंदर हम प्लेस करें तो we will be getting TEFS will be equal to DFS divided by DFS plus NFS. Now look at this. हमने कहा कि सिस्टम टाइप नंबर है, that is the number of S factors in the numerator of TEFS. Okay, अब numerator of TEFS को अगर हम देखें तो that is in fact denominator polynomial of GFS, और GFS क्या है आपके पास? straight away plant का ट्रांसमिटेंस मौजूद है. So इस बात का मतलब ये है कि if we have a unity feedback system, we don't need to get TFS and from there TEFS, and from there we are saying that what is the system type number. By looking at the numerator of TEFS, there is no need. So you just look at this GFS, और GFS का जो भी डिनोमिनेटर है, GFS का जो भी डिनोमिनेटर है उसके अंदर आप देख लीजिए कि कितने S is equal to 0 डिनोमिनेटर जो आपके रूट्स हैं वो मौजूद हैं. So for a unity feedback system, the system type can be determined by the number of S is equal to 0 denominator roots of the transmittance GFS. So एक तरीका तो ये था कि TEFS देखिए, एंड ऑफ कोर्स TEFS के लिए आपको TFS वाला रूट जो है वो लेना पड़ेगा. TFS पहले लेंगे, फिर TEFS लेंगे, इसका न्यूमरेटर देखेंगे, इसके अंदर जितने भी S is equal to 0 वाले रूट्स पड़े होंगे आप कहेंगे कि ये मेरा सिस्टम टाइप नंबर है.
But if it's a unity feedback system, you don't need to go to TEFS. You just go to GFS, go to its denominator and look at the number of S is equal to 0 roots देखें. That would be system type number. Questions please. सर काइंडली ये रिपीट कर दे, समझ नहीं आया. ईशा बात कर रही हैं. जी सर. अच्छा ईशा ये बताइए कि हमने पीछे डेफिनेशन क्या दी है टाइप नंबर की. सर नंबर ऑफ एस टर्म्स number of factors of S. ठीक है. In the numerator of TEFS. ठीक है बच्चा. यस सर. अच्छा TEFS बेटा क्या होता है? That is 1 minus TFS. या इसे कह लें this is EFS. Sorry, TEFS into RFS जो है that is equal to EFS होता है. So both of these we have already seen. यहाँ पे अगर हम जाएं तो we have talked about this. TEFS into RFS that is EFS. ठीक है. और पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि TFS जो है in fact that's written here as well that TEFS is equal to 1 minus TFS. ठीक है बच्चा. यस सर. ओके. अब ये मेरे पास एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है. तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम अगर मेरे पास मौजूद हो तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर दैट इज इट इज g of s over 1 minus g of s. 1 plus GFS. अगर नेगेटिव फीडबैक है तो 1 plus Yes, sir. GFS. और अगर यहाँ प्लस साइन होता इस जगह पे तब हम माइनस. ठीक है बेटा. यस सर. ओके. अच्छा अब मैंने इसी इक्वेशन के अंदर TEFS को मैं देख रहा हूँ. TEFS इज इक्वल टू 1 माइनस TFS और TFS की वैल्यू मैंने ये जो है वो मैंने यहाँ पुट कर दी. एग्रीड? यस सर. और यहाँ से मैंने देखा कि दिस इज नथिंग बट 1 plus 1 over 1 plus GFS. एग्रीड? यस सर. ओके. नाउ व्हाट इज GFS? GFS भी तो ट्रांसमिटेंस ही है, ट्रांसफर फंक्शन काइंड ऑफ थिंग है ना. यस सर. इट इज इसके अंदर n of s over d of s. इसके अंदर न्यूमरेटर भी होता है, इसके अंदर डिनोमिनेटर भी होता है. ठीक है. सो इसको मैं कह रहा हूं पोलिनोमियल. एक ऐसा न्यूमरेटर पोलिनोमियल है s में. सो ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना मेरा GFS इज इक्वल टू s over s square plus 3s plus 1 हो सकती है ना. सो दिस इज अ पोलिनोमियल इन s. that is called numerator polynomial and that's a characteristic polynomial कह लीजिए या आपका DFS है, denominator polynomial of S. Agreed बेटा? Yes sir. Okay. So in this equation we have put this thing. GFS की जगह पे हमने NFS over DFS place कर दिया. So GFS is equal to NFS over DFS and finally TEFS will be equal to what? 1 plus 1 over GS अगर हम करें तो TFS जो है that is equal to DFS divided by DFS plus NFS. Now what was the definition of the system type number? That was the number of S is equal to 0 denominator roots or poles जो भी पड़े जो रूट्स पड़े हुए हैं वो आपके न्यूमरेटर में TEFS के न्यूमरेटर में. अब TEFS के न्यूमरेटर क्या है? DFS है. DFS किसका DFS है? दैट इज GFS का डिनोमिनेटर है. तो इस बात का मतलब है मैं इस सारे प्रोसेस में से अगर ना गुजरूं, मुझे इस सिस्टम मुझे गिवन है, मैं TFS फाइंड करूं फिर TEFS फाइंड करूं फिर उसका न्यूमरेटर देखूं. इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई गो डायरेक्टली टू दिस GFS, इफ इट्स अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मैं डायरेक्टली GFS में जाऊं और उसका जो भी डिनोमिनेटर है उसमें देख लूं कि मेरे पास अगर कोई S इज इक्वल टू 0 रूट मौजूद है तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट के ये मेरा सिस्टम टाइप नंबर है. Have I answered your question, beta? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, beta. So, चलें ये हो गया. अब दूसरी तरफ आते हैं. नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है अगर मेरे पास. नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो एक तरीका तो ये है, ये मैं डायरेक्ट GFS में नहीं जा सकता हूँ बिकॉज वी हैव सेड कि यूनिटी फीडबैक के लिए अगर सिचुएशन होगी तब तो मैं GFS के डिनोमिनेटर में जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. एक तरीका तो ये है कि मैं नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को मैं ट्रांसफॉर्म करूं इनटू यूनिटी फीडबैक सिस्टम बाय अप्लाइंग द टेक्निक्स जो कि मेरे पास मौजूद हैं.
जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी कि आप किस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम से दूसरी ब्लॉक डायग्राम में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं. सो ईदर यू यूज दोज टेक्निक्स एंड मेक दिस non-unity feedback system into unity feedback system, and in that case you are getting this as GEFS. ठीक है. सो GEFS जो है, अब उसके जो डिनोमिनेटर में जो भी पोल्स अपना रूट्स पड़े हुए हैं उसकी बेसिस पे आप सिस्टम के बारे में फैसला कीजिए. बट दिस इज अ बिट डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग. सो हो सकता है कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो ब्लॉक डायग्राम है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो और उसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो इस केस में जो बेटर ऑप्शन है वो यही है कि आपके पास नॉन यूनिटी अगर फीडबैक सिस्टम हो, गो टू TFS, फाइंड आउट करें TFS. TFS से आप TEFS फाइंड आउट करें और TEFS का न्यूमरेटर देखिए, और न्यूमरेटर में अगर आपके पास s इज इक्वल टू 0 रूट्स मौजूद हैं तो दैट वुड बी द सिस्टम टाइप नंबर. क्वेश्चंस प्लीज, एनी कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस? यूनिटी फीडबैक के किस तरह से टाइप नंबर फाइंड आउट करना है और नॉन यूनिटी फीडबैक का टाइप नंबर किस तरह से फाइंड आउट करना है? एनी कंफ्यूजन्स? इब्राहिम, दूसरे वाला इब्राहिम जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो ना बताएं. दूसरा इब्राहिम अगर बैठे. इरफान. सर इरफान सर अभी वो आर्मी के इनिशियल देने गए हैं सर. अच्छा ठीक है. असफर सीआर बैठे. सीआर आ गए हैं. जी ईशा बेटा, एनी क्वेश्चन? No, sir. No question. मायदा. आयशा. Sir, Maida and Aisha are not in the class. Not in the class. Okay. Okay. So no questions. Should we move forward? Memon, any question बेटा? नो सर. ओके. सिस्टम टाइप नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है यूनिटी फीडबैक सिस्टम का तो मैं क्या करूंगा? सर g(s) के डिनोमिनेटर में से s = 0 के रूट देख लेंगे. ग्रेट, जबरदस्त. और अगर मुझे नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का देखना है तो इसमें से सॉल्व करेंगे सर उसको t(s) पहले. TFS, यानी एक तरीका तो ये है कि आप उसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर लें. दैट्स अ पॉसिबल ऑप्शन. इसमें कोई मसले वाली बात वो नहीं है, आप कर सकते हैं. बट दैट वुड बी बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो ये GEFS है, GFS नहीं है. सो ओके. सो GEFS के आप डिनोमिनेटर को देख लें, देन इट वुड वर्क. बट अगेन, टू अवॉइड डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस, बेहतर तरीका यह है कि टेक अ सिस्टम विद द नॉन यूनिटी फीडबैक, take the transfer function of that. From there you can get the TEFS, which is just 1 minus TEFS, and then इसका न्यूमरेटर देखें. अगर इसके अंदर s is equal to 0 रूट्स हैं, that would be your system type number. Great. चलें जी. अच्छा, अब सिस्टम टाइप नंबर के बारे में हम देख चुके हैं कि दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट एरर टू द पावर ऑफ टाइम इनपुट्स. अगर सिस्टम टाइप नंबर जो है, इफ दैट इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ टाइम इनपुट, द स्टेडी स्टेट एरर इज 0. if system type number is equal to power of time input, the steady state error is constant. So ये चीजें हम देख चुके हैं. थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि अगर सिस्टम टाइप नंबर जो है, if that is greater than the power of t in your input, इस केस में आपकी स्टेडी स्टेट एरर जो है क्या होगी? 0 से. ओके, ग्रेट. दैट इज इक्वल टू 0. सपोज मैं कहता हूं मेरे पास सिस्टम टाइप नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 2 है, और मेरे पास जो इनपुट है दैट इज रैम्प. सो रैम्प में क्या होती है? रैम्प t², सॉरी, इस केस में पावर ऑफ t जो है वो 1 है, टाइप जो है वो 2 है. सो टाइप जो है
सिस्टम टाइप जो है दैट इज ग्रेटर देन पावर ऑफ टी, सो द स्टेडी स्टेट एरर विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से टाइप 2 के लिए मैं कहता हूं अगर इनपुट जो है दैट इज इक्वल टू पैराबोलिक है, अगर in that case it is something t square u of t है। so type जो है that is equal to power of t, this is t, so as a result of that आपकी steady state error क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट होनी चाहिए। so इस बात का मतलब ये है that we always desire to raise the system type number because we always want कि हमारा जो steady state error है that should be 0 or that should be constant, इससे ज्यादा ना हो, infinite ना हो, ठीक है। so ये मेरी requirement है। so how can we do it? so ये मेरे पास एक सिस्टम है, कंसीडर द फॉलोइंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसमें ये मेरे पास प्लांट है जिसका गेन जो है प्लांट का ट्रांसमिटेंस जो है दैट इज 1/s+2 और एम्पलीफायर है जिसका गेन जो है वो k है। दिस इज माय एरर सिग्नल बिटवीन RFS एंड YFS and that's the unity feedback. Now the difference between input and output is being calculated here, that is amplified and given to the plant to reduce the difference between this output and input. Okay, so that's just the definition and explanation of this system, what this system is doing. Now the system transfer function अगर मैं interested हूँ तो what is GFS? Sir, k over s+2. What is the type number of this system? Sir, 0. Great. System type number is equal to 0 because there is no s is equal to 0 root in denominator of GFS. So it is a type 0 system. लेकिन अब हम जरा देखते हैं इसको, यानी डायरेक्ट आप अगर देखना हो आपको क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो आप इसको देख सकते थे। ओके, अब अगर मैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना चाहूँ तो दैट इज YFS डिवाइडेड बाय RFS एंड इनफैक्ट दैट इज TFS जो है दैट इज अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था दैट इज GFS plus 1 plus GFS and GFS is nothing but k over s+2. so putting these values you will be getting this transfer function which is k over s+2 plus k. and if now I'm interested in the step input for this system, so RFS will be equal to a over s, YFS जो है मेरा TFS RFS है, that is this thing, and error between input and output अगर मैं find out करना चाहूँ तो that is in fact the same thing. ये मेरे पास जो है this is my error which we have already said this. ये मेरी EFS है and I am interested in knowing the steady state error. So what will happen? Again the final value theorem मैं use करूँगा. So limit s tends to infinity s EFS and that's यहाँ पे जरा देख लें t tends to infinity है, ये गलती है, इसको t raised to power t tends to 0 s tends to 0 है and this is s tends to 0 as well. So this would happen. So limit s tends to 0 a s plus 2 divided by s plus 2 plus k and that's equal to 2a over 2 plus k. Agreed? That is some constant और type 0 system है, step input जो है आपकी क्या है, उसका जो पावर है वो भी 0 है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर गेटिंग सम कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज टाइप क्या थी सिस्टम की, टाइप नंबर दैट इज इक्वल टू 0, पावर ऑफ टी जो है दैट इज इक्वल टू 0 इन दिस केस बिकॉज इट इज आर ऑफ टी जो है दैट इज टी रेज टू पावर 0 यू ऑफ टी ए टी रेज टू पावर, सो पावर ऑफ टी जो है दैट इज इक्वल टू 0. so as a result of that both are equal, both are comparable to, in that case we will be saying that it is the steady state error जो है constant है. Okay, and if we gain की वैल्यू अगर हम बढ़ाते चले जाएं in that case denominator में gain रखा हुआ है तो we can make our error small.
लेकिन अगर सपोज मैं अपनी इस एरर को जीरो करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं मैं इसके साथ, इस सिस्टम के साथ? ये जो क्लोज लूप सिस्टम मेरा रखा हुआ है, इसके साथ मैं क्या करूं कि मेरा जो एरर है, जो स्टेडी स्टेट एरर है, उसको मैं जीरो बना दूं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारा सिस्टम टाइप नंबर जो है, इट शुड विन द पावर ऑफ टाइम। ठीक है, पावर ऑफ टाइम स्टेप इनपुट की क्या है, जीरो है। इस केस में जो इस वक्त मेरे पास सिस्टम रखा हुआ है, उसमें मेरे पास जो टाइप है इसकी, वो जीरो है। सो अगर मुझे इसकी टाइप बढ़ानी हो तो क्या होना चाहिए? इंट्यूटिवली क्या सोचते हैं आप? सर डेरिवेटिव ले लें। करीब करीब थे। सो इनफैक्ट बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंटीग्रेटर इंट्रोड्यूस करा दें। ठीक है, सिंपल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग और अरेजिंग द टाइप नंबर ऑफ द सिस्टम इज टू डिराइव द प्लांट, यानी आप इस प्लांट को डिराइव करें विद अ सिग्नल प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ द एरर। यहाँ पे आपके पास एरर आ रही थी, इसका मतलब ये है कि आप एक और ब्लॉक ऐड करें फॉरवर्ड पाथ में, विच इज एन इंटीग्रेटर 1/s। अब 1/s की वजह से क्या होगा, आपका GFS क्या बन गया है? अब आपका GFS इज इक्वल टू K/S S+2। Now what is the type number? सर 1 1 हो गया है, बिकॉज GFS के डिनोमिनेटर में आपके पास एक S इज इक्वल टू 0 रूट आ गया है। सो इस इंटीग्रेटर की वजह से अब टाइप नंबर जो है वो पावर ऑफ T जो आपकी इनपुट में थी वो 0 थी। सो टाइप नंबर विंस। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी? सर अगर TF_S का अगर डेरिवेटिव ले लीजिए जाए तो। TFS का डेरिवेटिव? यस सर, ओवरऑल। उससे क्या होगा? सर TF_S का के न्यूमरेटर में S मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोबारा कंडीशन हो जाएगी। नहीं, उससे रूट आता है एक आपके पास। और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि हमने ये देखना है कि हमने एक रूट जो है GFS के अंदर, जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक S इज इक्वल टू 0 पोल जो है, S इज इक्वल टू 0 रूट कह लें, वो हमने इंट्रोड्यूस कराना है। देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस, बट वी आर सेइंग दैट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक। So this is the simplest method, that you are introducing integrator, and as a result of introducing this integrator block in this forward path, so as a result of that, what will happen, your GFS will be introducing S is equal to 0 root in its DFS, which is in fact the type number of the system, and then type in this case type number is 1, and step input के केस में power of T जो है that is equal to 0, so steady state जो है that error will be equal to 0. Agreed? यस सर। Okay. So this is the situation. You get your EFS, which is nothing but AFS into AFS is the step input, 1 minus TFS. So that's your TFS, TEFS. So as a result of that, ये आपके पास EFS आ जाएगा, and then you will be using the final value theorem to get the steady state error. So steady state error in this case will be equal to 0. और अगर रैंप इनपुट होगी तो in that case what will happen, आपकी जो RFT है, RFS है, that would be equal to A over S square, and as a result of solving this thing, SEFS, you will be getting 2A over K, and of course that is equal to some constant. And why it is constant? Because system type number जो है इस केस में that's equal to 1, and जो आपके पास power of T है ramp input के अंदर, that is equal to 1 as well. So as system type number and power of time जो है they are equal, power of T equal है input के अंदर, so as a result of that आपकी steady state error जो है
एग्रीड बच्चा? यस सर। एनी क्वेश्चंस? मेमन? नो क्वेश्चन सर। मुझे तो लगता है क्लास में मेमन और ईशल ही बैठे होते हैं, बाकी सो रहे हैं। क्या चक्कर क्या है यार? अभी ये डिफरेंशिएशन वाली जिसने बात की थी उस बच्चे का नाम क्या है? इब्राहिम? क्या नाम है बेटा आपका जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था? सर आतिफ नवाज। आतिफ नवाज। तो बस 2-3 बच्चे ही बैठे हुए हैं, बाकी किधर है भाई? जाग रहे हो, सो रहे हो? नंग्याल बैठे हैं आप? जाग रहे हैं सर, जाग रहे हैं सर, सुन रहे हैं। जाग रहे हैं तो कोई सवाल सवाल पूछो, जागने वाली हरकतें करो यार। क्या हो गया? रोजा लगा हुआ है? हाँ सर। नंग्याल क्या खाया था शहरी में? हाँ, सर मूंगी चने थे। चने चने खाए थे। अच्छा, ठीक ठीक। चलें जी। ओके जी, ड्रिल प्रॉब्लम्स। और नंग्याल जो है, आप नंग्याल आप हमारी हेल्प करेंगे। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी बिस्मिल्लाह नंग्याल प्लीज। सर ये रीडेबल है? यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो हम इसके टाइप नंबर जब फाइंड करेंगे तो हम इसका डायरेक्ट इसके जीएफएस से है हम फाइंड कर सकते हैं। मेरा मेरा जीएफएस के बेटा, मेरा बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ लो। सर पढ़ लिए। पढ़ लो ना, पहले पढ़ तो लो, फिर बात करते हैं ना। पढ़ लिया? यस चलो अब बताओ क्या करें। अब गाइड करते जाओ। सर, पहले हम सिस्टम टाइप नंबर फाइंड कर देंगे। मेरा बेटा सिस्टम, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जरा क्वेश्चन पढ़ें, इसीलिए कह रहा हूं। देखिए पहली चीज क्या आ रही है? पहली चीज आ रही है फाइंड आउटपुट इनपुट एरर ट्रांसमिटेंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। सो इस बात का मतलब है क्या चाहिए मुझे? मुझे TEFS कैलकुलेट करना ही करना है, हर सूरत में करना है, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो TEFS अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है मुझे क्या फाइंड आउट करना चाहिए सबसे पहले? टीएफएस। TFS फाइंड करना चाहिए। गुड, शाबाश। सो TFS आपने फाइंड आउट किया। TFS इज व्हाट? It is nothing but 6x plus 8 divided by s square plus 6s plus 7 divided by 1 plus 6s plus 8 divided by s square plus 6s plus 7. So as a result of that you are getting s square plus 6x plus 7 को आप cancel out कर सकते हैं। So आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? It is s square plus 6s plus 7 plus 6s plus 8 and it is 6s plus 8. So finally TFS is equal to 6s plus 8 divided by s square plus 12s plus 50. Okay? नंग्याल यस सर। जाग जाना यार, तेरे लिए तो कह रहा हूं कि तू जरा जाग जाए, इसीलिए बात कर रहा हूं तुमसे। यस सर। Okay, so what should be the next step? सर 1 माइनस टीएस कर देंगे। जबरदस्त। 1 माइनस TFS कर लेंगे एंड 1 माइनस TFS जब हम इसे करते हैं तो वी गेट s square plus 6s plus 7 divided by s square plus 12s plus 15. One thing is important कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल TFS का और TEFS का ये हमेशा सेम रहता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक, अच्छा जी। अब यहां से भी सिस्टम टाइप नंबर पता चल सकता है और आपने इमीडिएटली गेस किया था, वो गेस भी ठीक था,
बट हम प्रोसेस जिस तरह से स्टेटमेंट कह रही है हम उस स्टेटमेंट के साथ चल रहे हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम चलें तो सिस्टम टाइप नंबर अब वो कहता है हमें बता दें, डिटरमिन द सिस्टम टाइप नंबर। तो टाइप नंबर मुझे क्या पता बताता है कि न्यूमरेटर को देखूं TEFS के और वहां पे देखूं S इज इक्वल टू 0 रूट्स हैं, तो सिस्टम टाइप नंबर क्या कहता है जी? जी जी नंगियाल बेटा। सर 2। 2 कैसे? 0 0 है बच्चा, इसमें तो कोई ऐसा रूट S इज इक्वल टू 0 वाला कोई रूट पड़ा हुआ है? अगर मैं इसको न्यूमरेटर को देखूं तो इट इज समथिंग, इसके मैं S प्लस समथिंग और S प्लस दो रूट्स निकलेंगे, सपोज इट इज S प्लस 4 एंड S प्लस समथिंग लाइक दैट, जो भी निकलेगा तो ये तो S प्लस -4 और -3 पे रूट निकलेंगे इसके, वैसे निकलेंगे नहीं मैं, लेकिन S इज इक्वल टू 0 वाला तो कोई रूट नहीं है ना इसके अंदर, यस ठीक है ना? यस सर। Okay, so system type number is 0 and it was obvious from here as well कि इसके जो आपका GFS था, this was your GFS, तो GFS के डिनोमिनेटर में देखें तो यहां पे भी आपके पास कोई चीज नहीं है, एंड इनफैक्ट अगर गौर से देखें तो GFS का डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर इट्स द सेम थिंग। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर फर्ज किया इस तरह की सिचुएशन है जिसमें पॉलिनोमियल जो है आपका, सॉरी जो सिस्टम है वो यूनिटी फीडबैक है, तो वी कैन गेट द टाइप नंबर, सिस्टम टाइप नंबर फ्रॉम GFS डायरेक्टली। बट हियर द ओरिएंटेशन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस कि वो पहले आपसे ट्रांसफर फंक्शन और TEFS फाइंड आउट करा रहा था। सो इनिशियली आई वेंट थ्रू दिस द होल प्रोसेस के पहले TFS फाइंड आउट कर लें, फिर TEFS फाइंड आउट कर लें, और यहां से आप दोनों जो रिजल्ट आप यहां पे फाइंड आउट कर लें, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम योर GFS एज वेल। एंड देन फाइनली इट इज सेइंग कि आपने स्टेप इनपुट और रैंप इनपुट का स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। सो RFS जो है स्टेप इनपुट में क्या होती है, RFS इज इक्वल टू 1/s एंड वी आर इंटरेस्टेड इन E step of infinity at time t is equal to infinity। final value theorem use करें तो this is limit s tends to 0 s EFS, and this is what, limit s tends to 0 s EFS क्या है मेरा, TEFS into RFS। so as a result of that what's happening, s square plus 6s plus 6s plus 7 divided by s square plus 12s plus 15 and into 1/s. So this s would be cancelled, and as a result of that your output will be वन गौर से 7/15। 7 7 by 15। और देखिए जो भी आपकी आउटपुट स्टेडी स्टेट आउटपुट हो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मैं ठीक जा रहा हूं। सिस्टम टाइप नंबर इज 0 एंड फॉर आप RFS 1/s देखें तो इस केस में RFT क्या है, दैट इज इनफैक्ट t raised to power 0 u of t। सो पावर ऑफ t जो है that's equal to 0 as well, and comparing both of these, so we can say that our steady state step input step input के लिए जो steady state error होगी that would be equal to some constant, because system type number or power of t in the input is equal, both are equal, so we will be getting steady state step error जो है that would be constant, and we are getting some constant value। Agreed? Yes sir. Okay, and then the next part is that we have to calculate the ramp input के लिए हमने steady state error find out करनी है। So in this case RFS is equal to 1/s square, which is in fact the Laplace transform of R of t, t u of t। So here the power of t is equal to 1, और हमारे पास system type number जो है that's equal to 0
पावर ऑफ t जो है that's equal to 1. So what do you expect? Steady state error क्या होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? So infinite होगा. इनफाइनाइट होना चाहिए, एंड देन यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम हियर एज वेल कि अब आप इसे लिमिट t is equal to infinity eft, that is equal to limit s tends to 0, again final value theorem, which is s efs, and that's equal to limit s tends to 0, s square plus 6s plus 7 divided by s square plus 12s plus 15. ये वाला s इधर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 over s square आ जाएगा. So as a result of that you are having one s term in the denominator, and when s tends to 0 you will be getting infinity. जी जनाब, any question? ईशा? No sir, no questions. ओके, आगे चलें. Yes sir. Okay, now this is another problem. क्या करना चाहिए सबसे पहले? Sir T of S find करेंगे. TFS फाइंड करेंगे. सो TFS मुझे फाइंड आउट करना है, तो TFS मेरे पास यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैं वो लिख देता हूँ. इट इज 10 डिवाइडेड बाय s cube plus 13s square plus 34s plus 100. ठीक, ये मेरा TFS है, और TFS से मैं क्या करूँगा? I can get my TEFS which is 1 minus TFS, और वो भी मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ रखा हुआ है, दैट इज s cube plus 3s square plus 24s divided by s cube plus 13s square plus 34s plus 100. ओके, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मेरा यही है जो कि TFS का है, सेम है. ओके, टाइप नंबर क्या है जी सिस्टम? 1. any other comment on that? Sir 1 ही है. 1 ही है, गुड, शाबाश. सो हमने न्यूमरेटर को देखना है. सो न्यूमरेटर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एज वेल, दैट s square plus 3s plus 24 divided by the whole thing. So इस बात का मतलब है there is one s is equal to 0 root in the numerator of TEFS. So system type number जो है आपका that's equal to 1. देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना, उसी के हिसाब से आप चल रहे हैं. Find out input error, output input error transmittance which is TEFS, वो आपने find out कर लिया. Determine the system type number, वो आप TEFS से भी find out कर सकते थे और यहाँ से find नहीं कर सकते थे because it is not unity feedback system. So इस केस में तो आपको जरूर हर सूरत में TEFS find out करना ही करना था. So you have found TEFS, उसका न्यूमरेटर देखा, उसमें आपके पास एक रूट मौजूद था s is equal to 0 वाला. So you are saying that it's a सिस्टम टाइप नंबर जो है वो 1 है. अब आप कह रहे हैं कि स्टेप इनपुट और रैंप इनपुट के लिए आप अपनी स्टेडी स्टेट एरर बताइए. तो स्टेप इनपुट के लिए RFS जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर s. सो इस केस में आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है व्हिच इज e स्टेप t
sorry, plus 100 into RFS, which is 1 over S. So these will be cancelled, and what's the result? That's equal to 0. And in fact, अगर आप कहें कि सिस्टम टाइप नंबर क्या है, that's equal to 1. आपकी पावर ऑफ टी क्या है? स्टेप इनपुट के केस में पावर ऑफ टी इज इक्वल टू 0. सो सिस्टम टाइप नंबर विंस एंड एज ए रिजल्ट आपकी स्टेडी स्टेट एरर जो है in case of step input, that is equal to 0. Agreed? यस सर। ओके नंग्याल, अगर मेरी इनपुट जो है वो रैंप हो जाए, इस केस में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक्सपेक्टेशन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? सर फिर तो दोनों पावर सेम हो जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक। तो तो स्टेडी स्टेट फिर एरर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ग्रेट, जबरदस्त। सो इन केस क्या आपके पास इनपुट जो है दैट इज 1 over s square. In fact, that's the Laplace transform of t u of t. So and EFS is what? EFS is TEFS into RFS. So as a result of that, limit s tends to 0, s by definition आपके पास आ रहा है, then we have TEFS s3 plus 3s square plus 24s divided by s cube plus 30s square plus 34s plus 100 into RFS, which is 1 over s square. Now this s will be cancelled with this square. So as a result of that, what should be happening? क्या होना चाहिए? क्या रिजल्ट आएगा? 24 over 100. 24 over 100, because इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, s कॉमन कर दिया, that is s square plus 3s plus 24 divided by s cube plus 13s square plus 34s plus 100 into 1 over s. This s would be cancelled, and as a result of that your result will be 24 over 100, or this is equal to 6 over 24. Questions please. Any questions? Okay, great. अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए। जी मेमन, क्या करना चाहिए? सर पहले टाइप नंबर के लिए सर जी ऑफ एस का डिनोमिनेटर देखना चाहिए। जी टाइप नंबर क्या है बेटा? क्योंकि जीएफएस मौजूद है तो डायरेक्ट यहां से फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इट्स अ Zero. यूनिटी फीडबैक। 0 सर। ठीक है, यूनिटी फीडबैक है, टाइप नंबर हमें डायरेक्ट यहां से मिल गया क्योंकि आपके पास यूनिटी फीडबैक था, जीएफएस था, गिवन है, तो आपने यहीं से देख लिया और क्वेश्चन हमें नहीं रोक रहा कि हमने कोई और चीज फाइंड आउट करनी थी पहले। सो सिस्टम टाइप नंबर जो है आपका दैट इज इक्वल टू 0। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहे हैं? क्या आपको अंदाजा हो रहा है क्या पूछी जा रही है? सर स्टेडी स्टेट एरर से पहले ट्रांसमिटेंस से निकाल लें सर। मेमन इसमें गौर करें, देखिए एक चीज लिखी हुई है, एंड इफ द सिस्टम रीचेज स्टेडी स्टेट। इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का?
इस बात का मतलब है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है, यानी स्टेडी स्टेट में तो वही पहुंचेगा ना जिसको हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं, अदरवाइज तो वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, उसको हम स्टेबल सिस्टम हम नहीं कहते। सो व्हाट वी आर सेइंग कि पहले चेक कर लें कि क्या ये सिस्टम स्टेबल भी है या नहीं है। अगर तो इफ द सिस्टम रीचेस स्टेडी स्टेट, फाइंड स्टेडी स्टेट इनपुट आउटपुट एरर टू द यूनिट स्टेप एंड रैंप इनपुट। ठीक है, यानी फिर हमने ई इंफिनिटी और स्टेप इनपुट के लिए और रैंप इनपुट के लिए फाइंड आउट करना है। सो पहला काम ये कर लें कि देख लें ये सिस्टम जो है वो स्टेबल भी है या नहीं है। सो अगर आप इसके रूट मैटलैब के थ्रू फाइंड आउट करना चाहें, या अगर आपके पास कैलकुलेटर हो जो कि रूट्स फाइंड करता हो, तो यू कैन सी कि ये रूट्स जो हैं दीज आर S1 इज इक्वल टू -2.3146 एंड दो आपके पास कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ रूट्स हैं विच इज 0.1573 प्लस माइनस 1.3052 j. So as a result of that, जी मेमन सिस्टम स्टेबल है मेरा? Yes, sir. No, Isha. Oh, sorry, sir. Yes. So the system is Right, sir. unstable. So the response will not reach steady state. बस that's it. खत्म हो गई बात। आपने टाइप नंबर फाइंड आउट किया और आपने कहा कि सिस्टम इज अनस्टेबल, दैट वुड नॉट रीच स्टेडी स्टेट। ठीक है, सो गौर से अगर चीजें देख ली जाएं तो इसका एडवांटेज है आपको ज्यादा टाइम जो है नहीं लगाना पड़ता, यानी आपको सिस्टम इनपुट्स फाइंड आउट कर स्टेडी स्टेट एरर्स फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। चलें इसको देखें। सर एक क्वेश्चन था। जी बिस्मिल्लाह। सर ये रूट्स GFS के थे या TFS के थे? GFS के थे। यस सर। GFS के थे। आपका क्वेश्चन अच्छा है वैसे। सो TFS के रूट्स क्या होंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एम सॉरी, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो रूट्स हैं ये हैं असल में TFS के रूट्स के, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? सर आतिफ नवाज। आतिफ नवाज बेटा, ये TFS से ही आएगा विच इज इनफैक्ट ये जो रूट्स हैं आपके पास ये TFS के ही मैंने फाइंड आउट किए हुए थे। सो द एक्चुअल TFS का जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है दैट इज S³ + 2S² + S + 4, ये इसके रूट्स हैं TFS के। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू। चलें आगे। यस सर। ओके, नाउ वी हैव दिस प्रॉब्लम। GFS है, अगेन उसी तरह से है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। सो GFS जो है सिस्टम टाइप नंबर फाइंड आउट करने में हेल्पफुल हो सकता है। सो व्हाट इज सिस्टम टाइप नंबर ईशा? Sir, 1. System type number is 1. Good. Okay. And again क्योंकि उसने पूछा है कि चेक कर लें, तो इस केस में जब आपने अपना पोलिनोमियल देखना है, सो TFS का जो पोलिनोमियल है, TFS अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज TFS 2S + 1 2S4 + 4S³ + 6S + 1. So that's your characteristic polynomial for TFS. And as a result of that, आपके जो रूट्स हैं, कितने रूट्स होने चाहिए आतिफ? सर 4 रूट्स होंगे। 4 रूट्स होने चाहिए। जो दो पेयर्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, 2 रियल भी हो सकते, 4 रियल भी हो सकते हैं, 2 रियल और एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आप मैटलैब यूज करें तो यू हैव S1 = -2.46, S2 = -0.1640 and S34 which is a complex conjugate pole pair, it is 0.3128 ± 1.0682j. So is it a stable system? No sir. It's not stable system, so you don't need to proceed any further. So ये आपके पास पोल्स पड़े हुए हैं,
क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर जो है आपका राइट हैंड प्लेन में है, तो दैट्स व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल and the system the response will not reach steady state. So you don't need to get the steady state input and जो आपकी output जो है find out नहीं करने की जरूरत. Okay, but perhaps we have already done it. Yeah, we have done it. अच्छा जी, ये कुछ और क्वेश्चन था, सेम ही है. जी सिस्टम टाइप नंबर क्या है जी? नंग्याल. सर वन. सर 1. 1, शाबाश, गुड. सिस्टम टाइप नंबर आपका 1 हो गया. अब आपने फाइंड आउट करना है. सो फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द फॉलोइंग फॉरवर्ड ट्रांसमिटेंस डिटरमिन सिस्टम टाइप नंबर. मैंने इस वजह से जीएफएस से देखा क्योंकि उसने यूनिटी फीडबैक भी कहा हुआ था और इमीडिएटली पहले उसने जीएफएस मुझे सिस्टम टाइप नंबर ही मांग लिया. तो यूनिटी फीडबैक में जीएफएस का डिनोमिनेटर जो है मैं वहां से सिस्टम टाइप नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ. आई डोंट नीड टू गो टू टीएफएस. बट ये जो प्रीवियस केसेस थे वहां पे क्योंकि उसने हमें कहा ही उसने ये था कि पहले आप टीईएफएस फाइंड आउट करें. सो दैट्स व्हाई आई हैड टू गो फॉर द टीईएफएस. सो दैट वाज द रीजन. अच्छा जी, and if the system reaches steady state, find steady state input output error to unit step and unit ramp. सिस्टम के रूट्स फाइंड आउट कर लें, ऑफ कोर्स टीएफएस के. सो टीएफएस के अगर आप रूट फाइंड आउट करें तो इन दैट केस सिस्टम जो है आपका स्टेबल ही निकलता है. यू कैन फाइंड इट. सो अगर मैं स्टेडी स्टेट इनपुट के लिए इसकी आउटपुट स्टेडी स्टेट आउटपुट स्टेप इनपुट के लिए देखना चाहूँ, पावर ऑफ टी क्या होता है? स्टेप इनपुट में 0 से. t इज इक्वल टू पावर ऑफ t जो है वो 0 है बिकॉज r ऑफ t जो है दैट इज इक्वल टू t रेज टू पावर 0 u ऑफ t. सो क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टेडी स्टेट एरर क्या होनी चाहिए? 0 से. दैट वुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा. और इसी तरह से इफ मैं रैंप इनपुट की बात करूं तो पावर ऑफ t क्या होगी रैंप इनपुट में? 1 से. दैट इज इक्वल टू 1. एंड इन दैट केस पावर ऑफ t जो है वो इक्वल है सिस्टम टाइप नंबर के. तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट. That's equal to constant. Good. So बाकी रेस्ट इज डक शूट, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay. Again, it's a similar kind of question. What's the system type number? Zero, sir. 0. Because this is my unity feedback system, I can resort to GFS to get my system type number by looking at its denominator, and there is no s is equal to 0 root in the denominator of GFS. So as a result of that, we are saying that its system type number is equal to 0. And if the step input, now we are interested in knowing what is E step up infinity and E ramp of infinity. So what is your guess? E step of infinity क्या होना चाहिए? कांस्टेंट से.
It should be constant. Why? Because power of t जो है step input के अंदर that is 0, system type number भी 0 है. So as a result of that आपका जो steady state error है for this step input that would be constant. और e ramp of infinity क्या होना चाहिए? So infinity होगा. Infinity होना चाहिए because system type number is lesser than power of t in the input, so steady state response जो है that would be infinity. Agreed? Yes sir. Any questions, any confusions? No sir. ईशा देखें बेटा, मायदा और आमना वगैरह आ गए? नहीं sir. Maida is here. जी मायदा, एनी क्वेश्चन बेटा? मर जाएगा तू, तुझे बता रहा हूँ मैं। 220 वोल्ट डायरेक्ट मरेगा। ना कर कसम से, ये मशीन भी जल जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुझे। मशीन नहीं जल रही है, बसन हो गए। थैंक यू जी मायदा। ओके लेट्स मूव टू, अच्छा ये असाइनमेंट है आपकी, असाइनमेंट नंबर 3 फॉर इवन स्टूडेंट नंबर्स एंड ऑड स्टूडेंट नंबर्स के लिए आपके 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर लीजिएगा। बाय द वे इसमें असाइनमेंट नंबर 1 में एक चीज थी जो कि कुछ लोगों ने उसमें मिस्टेक की है, बाय गेटिंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। यू डोंट नीड उसके लिए, आरएफएस के लिए स्टेप इनपुट की जरूरत नहीं है। आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज YFS डिवाइडेड बाय RFS, सो देयर इज नो नीड कि आप एज्यूम करें कि स्टेप इनपुट RFS है आपकी, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की मिस्टेक की हुई थी, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी मार्क तो सारी हो गए हैं, 10 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, बस इसी तरह से ही हैं सबकी। बट दैट वाज द एरर। कंसर्न यही था मेरा कि आपको इस चीज़ को ज़रा देख लें कि स्टेप इनपुट के लिए, स्टेप इनपुट आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है RFS के लिए टू गेट योर ट्रांसफर फंक्शन। Okay, so this is your assignment 3, and the persons who haven't submitted their assignment 2, they are requested to submit it as soon as possible. Okay, चलें आगे। Sir, I think time खत्म हो गया। क्या कहाँ तक होता है हमारा टाइम? Sir, 11:30 तक होता है क्या? 11:30 तक होता है। अच्छा, तो आप बता दिया करें ना। अच्छा ओके, मैं यहाँ से अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ बिकॉज आपने किसी और क्लास में जाना होगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।